Hello students, now we are going to start the series of multiple integrals. Under this topic, these are the listed topics here which we are going to discuss one by one. The first one is evaluation of double integrals. Then second one, evaluation of double integral by changing the order of integration. Next one is triple integrals. In the next part, we will study how to solve double and triple integrals by changing the variables. And the last one is applications of double and triple integrals to calculate area and volume of required regions. In this first video, we will learn how to solve the double integrals. अभी हम first topic start करने वाले हैं कि double integrals को हमने कैसे solve करना है. Let's do that. Question number 1. Evaluate double integral x square plus y square dx dy. The limits given to us are 0 to 3 and 1 to 2. We have to solve this. Let's start with the solution. Let I is equals to 1 to 2, 0 to 3 x square plus y square dx dy. Put on the bracket like this. Now first we will solve the bracket. As per this, the integration is with respect to x between the limits 0 to 3. Integration of x square, x cube by 3. Now y is a constant with respect to x. If you are integrating, the variable y will be considered as a constant. Y square as it is into x 0 to 3 along with that dy. Now this is 1 to 3 upper limit minus lower limit. If I put 3 here, this will become 3 cube by 3 plus y square into 3. And if I am going to put the lower limit, eventually everything will become 0. So this is 1 to 2. So it's 3 cube by 3. Simply 3 square, that is 9 plus 3 y square dy. Now integrating with respect to y. Integration of 9 will be 9y. It will be 3y cube by 3. 1 to 2. Cancel this 3 and now put upper limit minus lower limit. 9 into 2 plus 2 cube minus put lower limit here, 9 into 1 minus 1 cube. Now if I am going to solve it, 18 plus 8 minus 9 minus 1. So this is minus 2, 18 minus 2, 16, and this is our answer. So this is how we solve the double integral for constant limits. कि अगर हमें जो limits हैं वो constants में दे रखी हैं. See, these are the limits and they were in the constant numbers ना. अगर numerical digits की form में जो हमारी limits हैं, so what we do, we just simply put on the bracket. हम bracket डालेंगे तो पहले यहाँ पे x के साथ इंटीग्रेशन हो गई और फिर y के साथ. ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करें, लाइक दिस सेम प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी, this can also be expressed as double integral x square plus y square. Now it's written dy dx. तो अभी क्या होगा, now the limits will be here like 1 to 2 and 0 to 3. तो अब ये चीज़ बन गई है. Now we will integrate first with respect to y and then with respect to x, and this is you are going to solve by yourself and you will see you will get the same answer. Let me explain this again what I am saying. So the thing is, if the region of integration R is given like this, x and y, where range of x is from a to b and range is y from c to d. अगर जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, x की लिमिट्स क्या है, a to b कॉन्स्टेंट्स हैं, y के लिमिट्स क्या है, c to d, और वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो आपको ये सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर, है ना. तो इसका आंसर चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो. द फर्स्ट इज इफ आई एम राइटिंग एफ ऑफ एक्स वाई, सी एंड रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट इंटेग्रल अगर हम इधर से बात करें, एंड दिस वन इज द सेकेंड.
ये ऑर्डर इस तरह से रहेगा, ये हमारा फर्स्ट इंटेग्रल है, और यहाँ पे अगर ये फर्स्ट इंटेग्रल है, इफ़ दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि मैंने पहले x के साथ इंटीग्रेशन करना है, सो आई विल राइट dx हियर, तो इधर से पहले ये dx आए, एंड देन सेकेंड इंटेग्रल ऑब्वियसली क्या होगा फिर हमारे पास dy। अब यहाँ पे x की लिमिट्स क्या हैं, द लिमिट्स आर a to b एंड फॉर y दे आर c to d। ये चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। और अब नाउ आई विल इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा dy, अगर मुझे y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है, सो द लिमिट्स विल बी ऑल्सो फॉर y विच वर c to d, देन विद रिस्पेक्ट टू x एंड द लिमिट्स विल बी a to b, और इन दोनों का आंसर सेम आएगा। बट रिमेंबर द लिमिट्स आर कांस्टेंट नंबर्स हियर, कि अगर आपको जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट नंबर्स में दे रखी हैं दोनों के लिमिट्स, x की भी y की भी, तो अब चाहे पहले x के साथ इंटीग्रेट कर लो या फिर पहले आप y के साथ इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जो हमारा रीज़न इस टाइप का होता है ना, इसको हम ये भी बोल देते हैं कि ये जो रीज़न है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रीज़न, क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, देखो बच्चे, लेट्स से दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी, तो आपका ये कुछ रीज़न इस तरह से बनने वाला है ना, तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर रीज़न बन जाता है। सो द फर्स्ट पार्ट क्लियर ना, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, द फर्स्ट पार्ट वाज सिंपली इवेल्युएटिंग द डबल इंटेग्रल्स ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन। अब रेक्टेंगुलर रीजन जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ उसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स द लिमिट्स आर कांस्टेंट फॉर बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। और इसमें जो आंसर है, इधर यू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई और यू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस ध्यान रखना है लिमिट्स को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ये ना हो आप यहाँ पे तो dx और dy को इंटरचेंज कर रहे हो और लिमिट्स को कर ही नहीं रहे हो चेंज, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। जब अगर मैंने यहाँ पे dy पहले लिखा है तो लिमिट्स भी फर्स्ट इंटेग्रल के ऊपर y की ही आपने पुट ऑन करनी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व डबल इंटेग्रल, इट्स एक्स वाई स्क्वायर, it's xy square dx dy, the range of x is from 0 to 1 and the range of y is from x square to x। अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ये क्या है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज x गोज़ फ्रॉम 0 to 1 एंड y गोज़ फ्रॉम x स्क्वायर टू x। अब ये जो रीज़न है ना, इसमें x की लिमिट तो कांस्टेंट है नो डाउट, बट जो y है वो हमें फंक्शंस की फॉर्म में दे रखा है, और यू कैन से y की वैल्यू वेरिएबल x की फॉर्म में दे रखी है। तो ये वाला जो रीज़न है ना, इसे बोलते हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीज़न। और इसमें आप डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है ना वो चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ना कि अब dx dy को इंटरचेंज कर दो आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसमें ऐसे आप डायरेक्टली ही नहीं चेंज कर सकते हो कि आप y के लिमिट्स को सीधा x की लिमिट को इंटरचेंज करो और dx dy चेंज करो और आंसर आ गया। उसके लिए हमारे पास अलग से एक टॉपिक है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसी के लिए है, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, कि नॉन रेक्टेंगुलर जो रीजन होता है हमारा उसको हम सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन है ना डबल इंटीग्रल, को पहले हमने सेट करके लिखना है। तो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल एंड दिस वन इज द सेकेंड। नाउ यू हैव टू पुट ऑन द लिमिट्स केयरफुली, और लिमिट्स के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये जो इंटीग्रल है ये पहले x के साथ इंटीग्रेट होगा या फिर y के साथ, बट एक ही ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्ज़ी चलेगी, आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी लिख दो। तो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज ऑन द फर्स्ट इंटीग्रल यू हैव टू पुट द वेरिएबल लिमिट्स एंड ऑन द सेकेंड इंटीग्रल यू हैव टू पुट द कांस्टेंट लिमिट्स। देखो जब भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा ना, पहली बात तो डबल इंटीग्रल की बात हो रही है, it's for double integral, one variable will always have constant limits and the other will have variable limits। दोनों में से एक की लिमिट कांस्टेंट रहेंगी और एक की वेरिएबल रहेंगी। ऑन द फर्स्ट इंटीग्रल यू हैव टू पुट द वेरिएबल लिमिट्स।
So I will put the limit here, x square to x, and this is for y. So first it will be dy, then eventually it will be dx from 0 to 1. अब ये इस तरह से सॉल्व होने वाला है. Now we will solve this. Integration 0 to 1, x is a constant, integration of y square, y cube by 3, upper limits x, lower limit x square, then dx. This 3 is a constant, I am writing it outside. It will become x cube and x square cube, na? Upper limit minus lower limit simply. So this will become x raised to power 4, this is 6 and this one 7. ठीक है ना. ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्यूब है तो ये एक्स रेस्ट पावर 6 हो जाएगा, कि बाहर भी एक्स है तो पावर 7 हो जाएगी. इंटीग्रेटिंग एक्स रेस्ट टू पावर 4 इज 5/5 and x raised to power 7 is x raised to power 8/8. 0 to 1, 1/5 minus 1/8. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना. अपर लिमिट क्या है 1, पहले दोनों जगह पे 1 पुट कर दो, देन माइनस लोअर लिमिट 0, put 0 here. So if you solve this, this is 1/3. 8 minus 5 upon 40. 8 minus 5 is 3, cancel, so it's simply 1/40, and this is your answer. So this is how we solve double integrals over the non-rectangular region. अभी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, जिसमें x की लिमिट्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और जो y की लिमिट्स है उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपर लिमिट और दोनों लिमिट दोनों में x होना चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है दोनों में से एक लिमिट में कांस्टेंट नंबर भी आ जाता है, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी वेरिएबल. तो हम यहाँ पे लिख देते कि जो y की लिमिट है वो है 5(1)x to 5(2)x की. ये आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है. x इज़ हैविंग कांस्टेंट लिमिट्स एंड y इज़ हैविंग लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x. तब अगर आपको ये सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन डी, तो उसका करेक्ट वे क्या है लिखने का. द करेक्ट वे इज डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई. First, we will integrate with respect to y, the one having variable limits, and I will write here 5(1)x to 5(2)x. Then I will integrate with respect to x. इसी तरह से let's say this region was defined in the opposite way, means the limits of y were let's say from c to d. अब y के लिमिट देखो, y में दोबारा से ये भी नहीं आएगा, obviously y will have the separate set of limits ना. And let's say x is having limits in terms of y. Let's say x is having limits f1y to f2y, और आपको वही सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रल डी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई. अभी फर्स्ट इंटीग्रल किसके साथ होगा पहले सॉल्व, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा dx, the limits from f1y to f2y, and then from c to d dy. और इनका आंसर सेम होता है. सी आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली इनका रोल स्विच कर दो फिर आंसर सेम आएगा. नो, इफ़ यू लुक एट द लिमिट्स आर टोटली डिफरेंट हियर. हम लिमिट्स को स्विच नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स. डायरेक्टली हम ये नहीं करें, जैसे हमने, अगर आपको याद हो जब रेक्टेंगुलर रीजन की बात हुई थी फर्स्ट इंटीग्रल में, वहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला क्वेश्चन था जो आई सिंपली इंटरचेंज डी वाई डी एक्स और उनकी लिमिट्स भी. अब आप देखो वाई की लिमिट्स यहाँ पे क्या थी 1 to 2 वाई की लिमिट्स, और यहाँ पे भी क्या है इट्स अगेन 1 to 2. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सी अर्लियर द लिमिट ऑफ वाई वॉज a different set 5(1)x to 5(2)x. now they are different. अब लिमिट्स टोटली चेंज हो रही हैं, और जो हमारा डबल इंटीग्रल उस रीजन के ऊपर, लेकिन आंसर क्या देगा, सेम देगा. मतलब कि अगर मैं बात करूँ इन सिंपल लैंग्वेज, लेट्स सी आपके पास ये फंक्शन था ना, द वन वी सॉल्व जस्ट नाउ डी एक्स डी वाई, द लिमिट ऑफ x was from 0 to 1 and y was from x to x square. यही हमने भी सॉल्व करा ना द सेम प्रॉब्लम. सो वी सॉल्व लाइक दिस. फर्स्ट राइटिंग
the limits of y, then writing the limits of x. Now you can't say that you can also write it like this, 0 to 1 and then x square to x and dx dy. ये आपने ऐसे लिख दिया. Now you are writing like this. See the difference. One way is this one, in which I am writing dy first. The other way in which I am writing dx first. This is totally wrong. The constant limits can't be evaluated first. They will be always put on the second integral or you can say more precisely on the last integral. आप ऐसे लिख ही नहीं सकते हो. और ये change of order नहीं है. This is not the change of order. You can do this if both the limits are constant or you can say if your region of integration was rectangular. फिर आप कह सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर रीजन है ना आपका इस टाइप, फिर आप बोल सकते हो कि x की a टू b है, y की c टू d है, आगे पीछे करके लिखा, काम हो गया. बट इफ़ द रीजन इज़ नॉन रेक्टेंगुलर, जब हम नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की बात करते हैं, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स वन इज़ हैविंग कांस्टेंट लिमिट्स, अदर इज़ हैविंग वेरिएबल लिमिट्स. तब ये आपका रीजन ऑफ जो इंटीग्रेशन है ना डी, जिसमें x की लिमिट कांस्टेंट है, उसको हम प्रॉपर मैथमेटिकल वे में चेंज करके नए सेट में लिखते हैं जिसमें y की लिमिट कांस्टेंट बनेंगी और वो हम प्रॉपर मैथमेटिकल वे में करते हैं, सिंपली इंटरचेंज नहीं कर देते तब. और इन दोनों का आंसर सेम आएगा अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हो. और इवेंचुअली आपका जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो उसमें कवर हो जाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में. वो यही है, इसी के लिए वो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए. तो अगर आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है, उसमें ये जो आपका फर्स्ट इंटेग्रल है दैट विल हैव वेरिएबल लिमिट्स एंड द सेकेंड वन विल हैव कांस्टेंट लिमिट्स. और अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है वो प्रॉपर मैथमेटिकल वे में होगा, ऐसे ही नहीं है कि लिमिट्स को आगे पीछे करके लिख दिया और हो गया. गॉट इट? Now let's solve one more problem of double integral in which the limits are not given to us directly, or instead of that the region D is defined from where we will calculate the limits first by plotting that on the graph and then we will calculate the limits. अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स में क्या होगा, हमें क्वेश्चंस में शेप्स या कर्व्स दे रखी होंगी, हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उनका जो रीजन है जिसके ऊपर हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है वो बाउंड्री रीजन हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ से जो हमें लिमिट्स चाहिए उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दैट एन एग्जांपल. So the question number 3 is evaluate double integral y dx dy over the region R, where the region R is bounded between the parabolas x square is equals to 4y and y square is equals to 4x. तो हमें ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रल y dx dy. जो हमारा रीजन R है वो क्या दे रखा है, दैट इज बाउंडेड बिटवीन टू पैराबोलास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. लेट्स बिगिन नाउ. सॉल्यूशन. गिवन इक्वेशंस आर x square is equals to 4y, let's say this is number 1, and y square is equals to 4x. ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है. और ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, बोथ ऑफ देम आर पैराबोलास. द फर्स्ट वन इज अपवर्ड पैराबोला एंड द सेकेंड वन इज राइट हैंड पैराबोला. फर्स्ट हमें अपवर्ड पैराबोला दे रखा है, सेकेंड हमें क्या दे रखा है, राइट हैंड पैराबोला. लेट्स ड्रॉ देम ऑन द ग्राफ, लेट्स प्लॉट देम. तो अगर हम इनको प्लॉट करेंगे अभी दोनों पैराबोलास को, तो हमारे पास ये हो गया हमारा फर्स्ट वन अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, और एक हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हमारा राइट हैंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. तो हमारा ये हो गया बाउंडेड रीजन. ठीक है, जिसके लिए हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है. नाउ फॉर दैट आई नीड द एंड पॉइंट्स हियर. So this point is obviously 0 0, but now the question mark is to calculate this point, let's say A. अब हमें A point के coordinates को solve करना है, निकालना है. For that what we will do, we will use the substitution method and we will solve number 1 and number 2. So from equation number 1
the value of y is x square upon 4. Put this value in equation number 2. What you will get here? This will be x square upon 4 again square is equals to 4x. So this is x raised to power 4 is equals to, this is 4 square 16 into 4, 64x. Shifting 64x to left side, taking x common. So I got either x is equals to 0 or x cube minus 64 is equals to 0, and this give me x cube 64, that is x is equals to simply 4. Now using either equation 1 or equation 2 and putting the value x is equals to 0, you will get for x is equals to 0, y is equals to 0. So the one point of intersection is 0 0, and for x is equals to 4, if you put here, यहाँ पे x को 4 put कर दो, y square will become 16, so eventually y is also 4. तो जो हमारे दो point of intersection है, they are 0 0 and 4 4. Now we will write the region of integration R, and it can be written in two ways, and I will show you both of them. तब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आर माई वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. अब आपको क्या करना है? फॉर द वन वेरिएबल यू हैव टू चूज द कांस्टेंट लिमिट्स, एंड फॉर द अदर you have to write down the variable limits. So let's say for x I am choosing the constant limits. So the beginning point is 0 and the graph goes up to the part 4. So the limits of x are from 0 to 4. Now for y, अब आपको y के लिए लिमिट्स निकालने. What you will do, draw a vertical line in the shaded region parallel to y axis. जिसकी लिमिट्स निकालनी है उसी के पैरेलल आपको एक एरो इस तरह से ड्रॉ कर देना है in the shaded region. Now look, this is your entry point, this one, and this is the exit point. जहाँ से वो शेडेड रीजन में एंटर कर रहा है वो पॉइंट पे देखो, मतलब वो पॉइंट कौन सा है? ये, दैट इज़ अ अपवर्ड पैराबोला, एंड अपवर्ड पैराबोला के ऊपर y की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4. और जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो क्या है? राइट हैंड पैराबोला, एंड राइट हैंड पैराबोला के ऊपर y की वैल्यू कितनी है? 4x का स्क्वायर रूट. And remember, you are not going to take the negative value since we are in first quadrant now. So this is how you will write the region of integration. और आप इसका opposite भी लिख सकते हो, or you can write r as xy. Now I will choose constant limits for y. अब y के लिए भी beginning point क्या है? 0 and the end point is 4. So 0 less than equals to y. Now I need to calculate the limit of x, but in terms of y. For that, what you will do, draw a line parallel to x axis. अब एंट्री पॉइंट देखो, ये है, ये कहाँ पे है? राइट हैंड पैराबोला पे. राइट हैंड पैराबोला पे x की वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर बाय 4. और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है? दिस इज द एग्जिट पॉइंट विच इज़ ऑन अपवर्ड पैराबोला, एंड अपवर्ड पैराबोला द वैल्यू ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ 4y. तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है. यू कैन गो फॉर फर्स्ट वन और यू कैन गो फॉर सेकेंड वन. आप किसी भी तरह से लिख सकते हो इनको. अगर फर्स्ट वन की बात करें, फर्स्ट वन के लिए आपका डबल इंटेग्रल क्या बनेगा? डबल इंटेग्रल वाई, है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा था. आई एम गोइंग टू राइट दिस वन ना. अब मुझे बताओ इसके लिए सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे? वी विल फर्स्ट राइट फॉर वाई, बिकॉज द लिमिट ऑफ वाई आर इन वेरिएबल ना. So it will be x square by 4 to, I can write it like 2 root x ना. Then for x 0 to 4 dx. अगर हमें सेकेंड टाइप के लिए लिखना हो, for this it will be y. First it will be dx because the limit of x are variable ना. y square by 4 to 2 root y, then dy 0 to 4, and solve any one of them टू कम्प्लीट द क्वेश्चन. आपको दोनों ही सॉल्व नहीं करने, किसी भी एक के साथ सॉल्व करना है, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, एंड इफ़ यू सॉल्व यू विल सी बोथ ऑफ देम विल गिव यू सेम आंसर. दोनों का जो आंसर है वो क्या है? सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं होगा. लेट्स नाउ आई एम गोइंग टू चूज द सेकेंड वन. मैं आपको सेकेंड के साथ सॉल्व करके बता देती हूँ कि हमारा किस तरह से सॉल्व होगा ये अभी.
For the second one, so this will be integral I will be 0 to 4, then y square by 4 to 2 root y, then y dx dy. So this is 0 to 4. Now y is a constant. Integration will be simply x, y square by 4 to 2 root y dy. So integration 0 to 4 y upper limit 2 root y minus y square by 4 dy. So I can write it like this will be y into root y, that is y raised to power 3 by 2, and here it will be y into y square y cube by 4 dy. Integrating, add 1 in the power, divide by same number, 3 by 2 plus 1 is 5 by 2, and this will be y raised to power 4 upon 4, so it will become 16. Upper limit minus lower limit, this 5 by 2 and 2, this will become 4 by 5, and here upper limit 4 raised to power 5 by 2, 4 raised to power 4 upon 16, and if you put the lower limit, everything will become 0. Now this is 4 by 5. Now this is 4 raised to power 5 by 2. I can assume it like this. 4 raised to power 1 by 2, then power 5. Square root of 4 is 2. So this is 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 is 32. Now see, this is 4 raised to power 4 upon 16. 16 means 4 square, na? So this is 4 by 5 into 32. 4 square by cancelling, na? And now 4 square is 16 simply again. I am taking 4 square common. So what is left here? अगर यहाँ से मैं 16 को बाहर निकाल लूँ, so what is left here? 8 by 5 minus 1, because it is 32 na. Don't get confused. 32 is 8 into 4. So I can eventually take 4 square common na. So this is 4 square, 8 minus 5 upon 5. 8 minus 5 is 3. 3 into 16 is 48 upon 5. This is your आंसर. और ये आपके ऊपर है, अगर आपको फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है तब भी आपका जो आंसर है वो 48 by 5 ही आएगा. So this is how we solve the double integral when the limits are not given to us directly. Rather, what we have to do, we have to plot the graph, and after plotting the graph, after calculating the necessary points of intersection, what you have to do is you have to redefine the region R in such a way that out of x or y, one will have constant limits and the other will have variable limits, and the one having variable limits, they are calculated by drawing a vertical line or a horizontal line in the shaded region. The entry point and the exit point will be your respective lower limit and upper limit. आपको करना क्या है, ग्राफ में अगर तो x की लिमिट चाहिए तो x के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, अगर आपको y की लिमिट्स चाहिए तो y के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल लिमिट एरो ड्रॉ कर दो. अब जो एरो है उसका जो एंट्री पॉइंट होगा वो आपकी लोअर लिमिट बनेगा, और जो एग्जिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका अपर लिमिट का पॉइंट होगा. ठीक है, दैट्स इट. सो दिस वाज हाउ वी सॉल्व डबल integrals. Rest we will continue with some more examples in their next topic, which is change of order of integration. Thank you.